Assalamu alaikum class. Okay, now we are going to proceed with the next topic, that is chapter 19, in which now we are basically going to study the long-term control of the arterial pressure regulation. If you remember last time, we discussed the short-term regulation or the intermediate regulation, and in that I highlighted the baroreceptors, the chemoreceptors, and the different other form of reflex mechanisms that can control the arterial pressure, right? So now when you're talking about the long term, if you have a look over here, you can see that the role of the kidneys has been highlighted over here. So one thing is very obvious that when we are going to talk about the long-term control, we are going to talk about it with the aspect of the kidneys, right? If you remember in the baroreceptor reflex as well, when we were talking about the longer term reset or the chronic reset, तो उधर भी मैंने एक किडनीज का जो है वो रोल हाईलाइट किया था या एम्फसाइज किया था कि over there we talk definitely with the aspect of the kidneys. So when we're talking with the aspect of the kidneys, जो एक चीज याद रखने की है or one thing that needs to be remembered is fluid intake versus the output. अब ये वाली लाइन जो है, this is the crux of the whole chapter. That means fluid intake and output must be balanced. ठीक है? That means, for example, I say normal intake of water should be at least 2 liters per day. Okay. So if the normal intake of water is at least 2 liters per day, that means the normal urine output is going to be approximately 800 to 2000 ml per day. यानी कि जितना इनपुट होता है यूजुअली उतना ही आपका आउटपुट होता है बैलेंस रखने के लिए. ये एक नॉर्मल हीमोस्टेसिस के मैकेनिज्म की मैं बात करी हूँ फ्लूइड वॉल्यूम के हिसाब से. But for example, depending upon the different weather conditions, if it's very hot, definitely this is going to change. If it is winter, definitely this is going to change. And then definitely if you're talking about the pressure, for example, if somebody has a low pressure for 60 किसी का आ रहा है 60 mmHg or 50 mmHg, so definitely the urine output is going to be nearly 0 ml, so that the fluid volume is going to be maintained or retained. And similarly, if somebody has 100 mmHg normal pressure, so then their urine output is going to be normal. अगर किसी का pressure ज़्यादा फिर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है फिर urine output भी उस हिसाब से increase होगा ताकि आपके पास जो है वो maintain हो जाए आपका BP. This is going to be the regulatory mechanism that we are talking about. ठीक है? So what is important in this aspect is that if you are saying that the blood volume increases and vascular capacitance is not altered. अभी अगर आप ऊपर भी देखें तो मैंने किस चीज की बात की थी, ब्लड वॉल्यूम की. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वैस्कुलर कैपेसिटेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लड वॉल्यूम. अगर ये वाली चीज आपको पिछले चैप्टर से समझ आई है, व्हेन आई वाज डिस्कसिंग थिंग्स, दैट मींस ब्लड प्रेशर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला अब तक आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पीपी इज इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट इनटू total peripheral resistance. ठीक है, so that means when I am talking about the cardiac output, या मैं जब ब्लड वॉल्यूम की बात कर रही हूँ, सो इनडायरेक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट दी कार्डियक आउटपुट. क्यों? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम से अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि अगर वो बढ़ाओगे तो आप फिर द कलेक्टिव blood that is going towards the right atrium you're increasing, that is the venous return you're increasing. And if you're increasing the venous return, so in other words you're increasing the cardiac output, right? So ये वाली चीज आपके पास यहाँ पे important है कि if the blood volume is increasing but the vascular capacitance is not getting altered, the arterial pressure will also increase. And this rising pressure will then cause the kidneys to excrete more volume, and this will bring the pressure back towards the normal. So this is a simple thing that I've explained with the pressure references above. कि अगर 50 mmHg है यानी कि प्रेशर अगर नीचे है तो ज़्यादा किडनी क्यों एक्सक्रीट आउट करेगी? You probably have an urea because you want the blood volume to be maintained at that particular level ताकि वो और नीचे ना गिरे. अगर नॉर्मल आपका प्रेशर आ रहा है तो ज़्यादा यूरिन आउटपुट भी नॉर्मल होगा आपका. और अगर आपका बढ़ा हुआ प्रेशर आ रहा है तो किडनी फिर एक्सक्रीशन को ज़्यादा करेगी ताकि ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल की तरफ आए और आपका प्रेशर जो है वो नॉर्मल पे मेंटेन हो जाए. ठीक है,
So this increase basically in the arterial pressure in human of only a few mmHg, which can double the renal output of water, is called pressure diuresis. अच्छा, diuresis का term मैं पहले भी आपके पास जो है वो use कर चुकी हूँ. That means you are going to have an increased excretion of the urine. And if you are also having a increased excretion of salt, it is going to be called natriuresis. ठीक है. अच्छा, अब ये एक बात यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि अगर आपको याद हो, we have done this thing Na, और इसको लेके फिर मैंने आपको एक टर्म अगर याद हो तो मैंने समझाई थी, दैट वाज दी हाइपो एंड दिस वाज कॉल्ड व्हाट. सोडियम होता है तो क्या कहते हैं हम उसको, नेट्रीमिया. या अगर बड़ा हुआ हो तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, हाइपर. और सोडियम होता है तो क्या कहते हैं, नेट्रीमिया. अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इट्स द सेम कॉन्सेप्ट, नेट्री यूरिसिस, राइट. यूरिसिस का मतलब है कि आप बढ़ा रहे हो एक्सक्रीशन, एंड नेट्री मीन्स किस चीज की एक्सक्रीशन बढ़ा रहे हो, सॉल्ट की. और सॉल्ट कौन होता है, सोडियम क्लोराइड. ठीक है. तो सॉल्ट की एक्सक्रीशन बेसिकली यू आर इंक्रीजिंग अप. आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज ये काफी आसान सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, प्रेशर्स के डिफरेंसेस अगर आपको समझने में मसला हो रहा है तो ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ. दीज आर व्हाट आई हैव डिस्कस्ड. ठीक है. ये मैंने अभी ऊपर आपको प्रेशर्स यहाँ पे जो है वो डिस्कस किए हैं, एंड दिस इज मेंशन इन दिस पैराग्राफ, राइट. अच्छा, अब अगर हम आगे की तरफ फर्दर मूव आउट करें तो यहाँ पे ये वाला ग्राफ जो है ना वो इम्पोर्टेंट है आपके पास. ठीक है. दैट मीन्स के अगर मैं लॉन्ग टर्म आर्टीरियल प्रेशर लेवल्स की बात करूं तो देयर आर जस्ट टू थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन और रिमेंबर, एंड दीज आर दीज 2 पॉइंट्स. क्या बात, क्या चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास यहाँ पे, कि यू हैव 2 प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स of the long-term arterial pressure levels. What is the first one? The degree of pressure shift of the renal output curve for water and salt. And the second is the level of the water and salt intake. ठीक है. तो ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी ये बताया है कि intake versus the output. This is what is basically going to regulate your kidneys mechanism for the arterial pressure regulation. ठीक है, कि input versus the output, यही वाली चीज आपके पास मेजर डिटर्मिनेंट्स में है, और यही वाली चीज जो है वो आपको याद रखनी है. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे फिगर इस वाली पे अगर आप आ जाएं, सो हमारे पास यहाँ पे जो क्रॉनिक इंक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर है ऑन यूरिन आउटपुट, it is basically because you are saying that not only there is direct hemodynamic effect on the kidney to increase the excretion, but there is also indirect effect that is going to occur by the nervous and the hormonal changes when the blood pressure is increased. जैसे कि increased arterial pressure will decrease the activity of the sympathetic nervous system, ऐसा होना चाहिए और होता भी है. And similarly, angiotensin 2 and aldosterone will also get decreased, which will reduce the salt and water excretion by the kidney. ठीक है. That means कि अगर जो है वो हमारे पास for example we say that the pressure is low and you want to increase the pressure, so definitely then you want to reduce the salt and water excretion by the kidney. And if you say that, for example, the pressure is high, so would you want to increase the anti natriuretic activity, vasopressin की एक्टिविटी आप बढ़ाना चाहोगे या घटाना चाहोगे? अगर प्रेशर ज्यादा है, for example, so you want the blood volume to be reduced or do you want the blood volume to be increased? ये अब मेरा पहला question है आपसे. If you remember, you had the concept of ADH, that is anti-diuretic hormone, जिसको आप vasopressin भी कहते हो. अब आप मुझे ये बताओ कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इंक्रीज्ड है, ठीक है, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन को कम होना चाहिए रिलीज या ज्यादा होना चाहिए रिलीज टू मेंटेन द
arterial pressure. ठीक है, to bring the arterial pressure back towards the normal. What should be the effect? अब मैं ये आपको यहाँ पे क्या बात बता रही हूँ कि एक तो किडनी का अपना काम है, ठीक है, यानी कि किडनी itself is regulating, एंड दूसरा मैं क्या कह रही हूँ कि besides the kidney itself regulating the volume, आपके पास और क्या क्या तरीका होता है कि किडनी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकती है? बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द हॉर्मोन्स। नर्वस सिस्टम में मैंने हाईलाइट किसको किया है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। और हॉर्मोन्स में मैंने किसको हाईलाइट किया है? एल्डोस्टेरोन को, एंजियोटेंसिन 2 को, और इसके अलावा मैंने किसको हाईलाइट किया है? दी एडीएच। ठीक है, तो इन सारी चीजों का जो है वो आपके पास इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये वाली इम्पोर्टेंट एक बात है कि सम ऑफ द फैक्टर्स कैन कॉज द ब्लड प्रेशर टू बी सॉल्ट सेंसिटिव। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास हाइपरटेंशन दो तरीके की हो सकती है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है, इट कैन बी सॉल्ट इनसेंसिटिव एंड इट कैन बी सॉल्ट सेंसिटिव। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉज द ब्लड प्रेशर टू बी सॉल्ट सेंसिटिव? ठीक है, इसके अंदर सबसे जो मेन फैक्टर आपके पास आता है, दैट इज द लॉस ऑफ द फंक्शनल किडनी नेफ्रॉन, बिकॉज ज़ाहिर है किडनी ही सोडियम की रेगुलेशन जो है वो करा रहा होता है। सो इफ यू आर सेइंग दैट देयर इज लॉस ऑफ द किडनी नेफ्रॉन्स ड्यू टू आइदर ओल्ड एज, ड्यू टू आइदर सर्जिकल रिमूवल, ड्यू टू आइदर एनी किडनी डिजीज, ड्यू टू आइदर ओबेसिटी और डायबिटीज mellitus, or due to chronic hypertension, then definitely it can basically lead to the um, sensitivity in the salt intake that is going to impact the blood pressure। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान, इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर कहें, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर कोई इंसान नमक ज्यादा लेता है या नमक कम लेता है, उसके बेसिस के ऊपर उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, उसको हम कह रहे हैं कि सॉल्ट सेंसिटिव ब्लड प्रेशर रेगुलेशन उसकी हो रही है, या हाइपरटेंशन जो है वो सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन है। वैसे यूजुअली नॉर्मली भी सॉल्ट जो है वो इम्पैक्ट करता है, लेकिन ऐसे लोगों के अंदर सॉल्ट जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, उसके अलावा आपके पास क्या हो सकता है? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, जिसमें आपके पास एक्सेसिव एंजियोटेंसिन 2 फॉर्मेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ एनी ट्यूमर। एक्सेसिव एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन हो सकती है बिकॉज ऑफ प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, एक बीमारी है। उसके अलावा आपके पास जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं इन अगेन द किडनी डिस्टल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आपके पास सोडियम रीअब्जॉर्प्शन के अंदर अगर इश्यूज आए। एक आपके पास कहलाता है लिटिल सिंड्रोम, जिसमें सोडियम चैनल एक्टिविटी आपके पास ज्यादा हो जाती है। एक कहलाता है गॉर्डन सिंड्रोम, इन विच यू हैव एक्सेसिव सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी। वन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड remediable aldosteronism, in which you have again excessive aldosterone. One is the congenital adrenal hyperplasia. Hyperplasia means increase, definitely, in which you have again excessive aldosterone. And then you have apparent mineralocorticoid excess, in which again you have the glucocorticoid activation of renal tubule and mineralocorticoid receptor. So if you have a look in all these things, तो मेन चीज आपके पास क्या आ रही है? either you are increasing the aldosterone, you are increasing the sodium activity, or you are increasing the glucocorticoid, again leading towards the excessive sodium intake। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिकली अगर आप देखो तो क्या कॉज करवा रही है आपके पास ब्लड प्रेशर टू बी सॉल्ट सेंसिटिव। एंड देन देयर आर सर्टेन ड्रग्स व्हिच कैन ब्लॉक द एंजियोटेंसिन और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम or the mineralocorticoid, and they can also influence or have an impact on the salt sensitivity of the blood pressure। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो टेबल है ये आपको किस एस्पेक्ट से याद रखना है कि सॉल्ट सेंसिटिविटी किन वजूहात की वजह से जो है वो क्रिएट हो सकती है, या इंक्रीज हो सकती है, या इन्फ्लुएंस कर सकती है, या इम्पैक्ट कर सकती है ब्लड प्रेशर को। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट मेन कॉजेज हैं, और उसके अंदर फिर उसकी सब क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस जो है वो हाईलाइट हुई हुई है, जो कि यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, अच्छा, ये वाली बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताई है कि व्हेन वी आर सेइंग दैट बीपी इज इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट इनटू टीपीआर, सो यूजुअली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द किडनी, you do not really emphasize on the TPR, you usually focus on the blood volume. And because you're focusing on the blood volume, so the main focus that you have is on the cardiac output। अगर आप यहाँ पे देखें तो लिखा भी हुआ है कि cardiac output equals to the total peripheral resistance
But if you are talking about the kidney, you are usually correlating it to the कार्डियक आउटपुट. ठीक है. अच्छा, लेकिन ये है कि डेफिनेटली जब कार्डियक आउटपुट प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चेंज होता रहेगा तो टीपीआर पे भी उसका इम्पैक्ट आता है, लेकिन फौरन से नहीं आता. बट अगर मैं इसको ये वाली चीज कहूं कि टीपीआर के बढ़ने से इट इज इंक्रीजिंग द इंट्रारीनल वैस्कुलर रेजिस्टेंस. अब यहाँ पे मैंने क्या वर्ड यूज किया है, ये बात जरा तवज्जो से सुनिएगा. आई हैव यूज्ड द वर्ड इंट्रारीनल. That means now I am talking about the kidney itself. So if you have increased the TPR, and that increased TPR has done what? It has increased the intrarenal vascular resistance. So this will alter the function of the kidney, and this can cause the hypertension because it is going to shift the renal function curve to a higher pressure level. ठीक है. तो इसका मतलब है कि वैसे अगर टीपीआर डायरेक्टली इंक्रीज होता है तो इतना इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन अगर वो टीपीआर लॉन्ग टर्म के लिए इंक्रीज होता है और इंट्रारीनल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है तो फिर डेफिनेटली आपके पास जो है वो इम्पैक्ट जो है वो आना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ वेस्कुलर रेजिस्टेंस एज वेल. ठीक है. तो सिंपल सी बात याद रखने की क्या है कि इसके अंदर मैंने ये वाली बात की है कि ब्लड वॉल्यूम को आप डायरेक्टली कार्डियक आउटपुट से रिलेट करते हो. कार्डियक आउटपुट की वजह से यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड देन जाहिर है किडनी एक्सक्रीशन ज्यादा करेगी, प्रेशर बैक टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगा. लेकिन हम उधर कब टीपीआर को इंक्लूड करते हैं कि जब टीपीआर आपके पास बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज द इंट्रारीनल वास्कुलर रेजिस्टेंस. तो फिर जाहिर है जब किडनी की अपनी वेसल्स के अंदर आपके पास रेजिस्टेंस के इशू आना शुरू हो जाएंगे तो ज्यादा फ्लो के इशू आना शुरू हो जाएंगे, एक्सक्रीशन के इशू आना स्टार्ट हो जाएंगे. तो उसकी वजह से फिर अगेन यू आर सेइंग कि वो कंट्रीब्यूट कर सकता है इन रेजिंग दी ब्लड प्रेशर. ठीक है. तो आई बिलीव ये वाली चीज क्लियर हो जानी चाहिए, इतना इसके अंदर कोई बहुत डिफिकल्ट चीज जो है वो नहीं है. अच्छा, ये वाला फिगर जो है, अगर ये वाला फिगर आपको समझ में आ गया तो मेनली ये बेसिक चीज जो हम सब बार बार रिपीट कर रहे हैं ये वाली, दिस इज यू कैन से द समरी of what I have explained up till now, or this thing is the basic concept of what we have talked up till now. ठीक है. तो ये बहुत अच्छा सा इन्होंने इसको एक टेबुलर फॉर्म में समराइज किया हुआ है. अब देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी ये वाली बात आपको बोली है. अगर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम आप इंक्रीज करते हो, सो यू हैव इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, राइट. If you have increased the blood volume, that means you have increased the mean circulatory filling pressure. If you have increased the mean circulatory filling pressure, that means you have increased the blood that is returning to the right atrium by the superior vena cava and the inferior vena cava, which is called your venous return. If you have increased the venous return, you have increased the cardiac output. ये कौन सा लॉ था? फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, याद है? So now if you have increased the cardiac output, so you have increased the arterial pressure, and because the arterial pressure is increased, what is going to happen to the urine output? It is going to increase to bring the arterial pressure back towards the नॉर्मल. ठीक है. तो ये वाला पूरा फिनोमिना है जो हम थोड़ी देर ऊपर अभी तक जो पूरा जो है थोड़ी डिस्कस कर रहे थे अगेन एंड अगेन. नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट. अब अगर मैं ये कहूं कि द कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज्ड, सो द इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट इज बेसिकली गोइंग आउट थ्रू द अयोटा. ऐसा ही है कि अयोटा से ब्लड बाहर जा रहे हैं एंड इट इज गोइंग टू द आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स. आपने पूरा कैस्केड एक पढ़ा है एंड देन इट इज गोइंग टू गो टुवर्ड्स द टिश्यूज. ऐसा ही है. अब अगर ये टिश्यू के पास जा रहा है और टिश्यू के पास ज्यादा ब्लड फ्लो जा रहा है तो दैट मीन्स एज एन ऑटो रेगुलेटरी फिनोमिना. ये कौन से चैप्टर में मैंने पढ़ाया है? 17 में, याद है? अगर ब्लड फ्लो आपके पास टिश्यू की तरफ ज्यादा आ रहा है दैट मीन्स यू आर गेटिंग मोर न्यूट्रिएंट्स, दैट मीन्स यू आर गेटिंग मोर ऑक्सीजन. नाउ व्हाट शुड दिस डू टू द वेसल? वो वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा या वेसल को डायलेट करेगा? ये वाली चीज मुझे यहाँ पे आंसर कीजिएगा तो फिर ये आपके पास ये वाला फिनोमेना कोरिलेट हो जाएगा. ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपसे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर ये आप आंसर कर पाए तो इसका मतलब है कि प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने जो भी रिकॉर्डिंग्स आपको शेयर किए हैं वो आपको मेरी बात समझ में आई है. आई विल रिपीट व्हाट द क्वेश्चन इज. मैंने ये कहा कि अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ तो इन अदर वर्ड्स आपने जो फ्लो टुवर्ड्स द पर्टिकुलर टिश्यू है, मैं अगेन पर्टिकुलर टिश्यू की बात कर रही हूँ, आपने उसको
इंक्रीज किया। अब अगर आपने फ्लो टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टिश्यू इंक्रीज किया, दैट मीन्स you have increased the nutrient supply to that tissue, you have increased the oxygen supply to that tissue. ऐसा ही है. If you have done this, so as an autoregulatory phenomena, now what should be happening to the vessels? Should they vasodilate or should they vasoconstrict? अगर आपको ये वाला जवाब आ गया तो फिर आप मुझे ये आंसर आराम से कर सकते हैं कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्यों बढ़ा, जिसकी वजह से आपके पास आर्टीरियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा. ठीक है, ये वाली बात अगर आप क्लैरिटी पे कर सकते हो तो इसको आंसर कीजिएगा बेटा. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड फ्रॉम यू. ठीक है, अच्छा इसके बाद आप आ जाए ये वाली पार्ट पे कि आपके पास सोडियम क्लोराइड की इंपॉर्टेंस जो है वो आर्टीरियल प्रेशर रेगुलेशन में बहुत है. अच्छा अगर ये देखो तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले भी ये वाली बात आपको बताई है कि सॉल्ट सेंसिटिविटी जो फैक्टर्स कॉज कर सकते हैं वो कौन से हैं. अब यहाँ पे हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि व्हाट आर two things that can basically play a role in regulating the arterial pressure with aspect of the salt. So what is the first thing? When definitely there is excess salt in the extracellular fluid, the osmolality should increase. ऐसा ही है, जाहिर सी बात है जब एक्सेस सॉल्ट होगा ECF में तो ऑस्मोलैलिटी ऑफ द फ्लूइड बढ़ेगी. नाउ दिस इन टर्न शुड स्टिमुलेट व्हाट, द थर्स्ट सेंटर इन द ब्रेन. इसको ऐसे एग्जांपल लो, आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल यू हैव ईटन फ्राइज, यू वेंट टू द कैंटीन एंड यू एट फ्राइज. कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ फ्राइज जैसा भी वो दे रहा है वो उसको प्लेन खा लेते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं उसके ऊपर खूब नमक ऊपर से डालते हैं. यूजुअली आपने देखा होगा कि पीपल एडवाइज नॉट टू पुट सॉल्ट फ्रॉम दी टॉप. ठीक है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं कि मसाला डाल दिया, बहुत सारा नमक उसके ऊपर टॉप से डाल दिया, चिकन पाउडर, इस तरह की चीजें जो है वो यूज करते हैं. और उसके बाद आप देखिएगा कि थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि यू फील द नीड टू ड्रिंक वाटर. वाई? बिकॉज डेफिनेटली दैट इंक्रीज्ड salt in the ECF has increased the fluid osmolality, which stimulated the thirst center in the brain, and that makes you drink extra amount of water. ठीक है, और फिर इससे क्या होता है, this additional water returns the ECF salt concentration to normal, but it is going to increase the ECF volume. ठीक है, पहली चीज हुई नमक ज्यादा खाने से क्या हुआ, या अगर आपने नमक का जो इस्तेमाल है वो किया तो आपके पास क्या हुआ. ठीक है, सेकेंड थिंग क्या होती है आपके पास कि ये जो इंक्रीज इन ऑस्मोलैलिटी है जो कि एक्सेस सॉल्ट से हुई इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, इट इज गोइंग टू स्टिम्युलेट द hypothalamus, and the hypothalamus is going to stimulate the posterior pituitary, and the posterior pituitary is going to secrete the vasopressin or the antidiuretic hormone. And if you remember this, the antidiuretic hormone is going to cause the kidney to reabsorb increased quantities of water from the renal tubular fluid, and this is going to decrease the excretion of the urine and again increase the extracellular fluid volume. ठीक है, अब मैंने दो बातें यहाँ पे समझाई. अच्छा ऊपर और नीचे में क्या फर्क है, ऊपर मैंने फैक्टर्स हाईलाइट किए थे कि सॉल्ट सेंसिटिविटी कैसे क्रिएट हो सकती है. ठीक है, कि कौन सी ऐसी डिजीजेस हो सकती हैं, कौन से ऐसे मसले हो सकते हैं कि जिसकी वजह से इंसान के अंदर सॉल्ट सेंसिटिविटी जो है वो ज्यादा हो जाए, जिसकी वजह से ब्लड फ्लक्चुएशन जो है वो आपके पास, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन जो है वो आपके पास आए. यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ कि जब आप सॉल्ट का इंटेक करते हो तो आपके पास किस तरह से प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सकता है. अब यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सॉल्ट सेंसिटिव इंडिविजुअल्स और सॉल्ट इनसेंसिटिव इंडिविजुअल्स. आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट जस्ट द सॉल्ट इंटेक. वेदर अ पर्सन इज सेंसिटिव और इनसेंसिटिव, उससे क्या फर्क पड़ेगा कि वो कितना ज्यादा प्रेशर वो इंक्रीज कर सकता है या नहीं कर सकता, इस चीज के ऊपर फर्क पड़ेगा. ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आई टॉक अबाउट माई सेल्फ और आई टॉक अबाउट यू गाइज, तो ये किस तरह बॉडी इसको जो है वो बैक टूवर्ड्स नॉर्मल लाने की कोशिश करेगी. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट दिस लेवल. ठीक है, अब आपने क्या करना है यहाँ पे, आपने मुझे ये बताना है कि अगर ये दोनों चीजों से ये वाली चीज अगर आती है तो हम इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं. यानी कि अगर यहाँ पे मैं दो चीजें ऐड कर दूं, फॉर एग्जाम्पल आई से इंक्रीज्ड सॉल्ट, so then can you
highlight the two mechanisms over here. And by these two mechanisms, then you are going to cause the increase in the extracellular fluid volume. और फिर आपके पास ये blood volume increase होती हुई कैसे increase arterial pressure करती है और फिर किस तरह से back towards the normal आपके पास increase urine output होगा ताकि जो है वो arterial pressure वापस आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से अब आपने क्या करना है कि ये एक फिगर बना हुआ है जिसमें उन्होंने डायरेक्ट एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ाया था। अब मैंने आपसे क्या कहा है कि आप इसको इस तरह प्लेस करके देखें कि अगर आपने सॉल्ट ज्यादा इनटेक किया तो कौन से दो मैकेनिज्म आपने स्टिमुलेट किए जिससे आपने एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज किया। ठीक है, बात क्लियर होगी कि मैंने क्या आपसे कहा है कि आपने ये वाली चीज जो मैंने यहाँ पे नीचे डिस्कस की है इसको यहाँ पे ऊपर देख के देखिएगा कि आप इसको कोरिलेट कर पा रहे हो या आप इसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हाइपरटेंशन को लेके आई शेयर अ सेपरेट वीडियो, हो सकता है मैं एक एनिमेटेड वीडियो आपको शेयर कर दूं और मैं एक हैंड रिटन चीज शेयर करूंगी आपके साथ जिसमें आई वांट यू, मैं आपको शॉर्ट में ये चीजें एक्सप्लेन करूंगी कि हाइपरटेंशन के प्रेशर्स को लेके, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को लेके क्लासिफिकेशन किस तरह से आपके पास होती है। एंड देन आई वुड लाइक के मैं probably I'll try if I find a video about the primary and the secondary hypertension and the gestation hypertension जो मैं आपसे शेयर कर सकूं ताकि वो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी आए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको इम्पैक्ट जो है वो कर सकती हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर आई माइट मेक अ पीपीटी एंड शेयर इट विद यू रिगार्डिंग दी हाइपरटेंशन बिकॉज आई कंसिडर दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मुझे लगता है कि अलग से ही आपको पढ़ाना चाहिए और आपको उसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से जो है वो चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट कर सकती हैं। अच्छा, आपने ये बात सुना होगा कि अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल इफ somebody has hypertension for a prolonged period of time, that means 10 साल 15 साल, और यूजुअली लोगों को ऐसा होता है कि 10-15 साल तक जो है वो हाइपरटेंशन जो है वो रहती है लोगों को, तो उसके बाद आपके पास उसकी वजह से किन किन चीजों पे असर आ सकता है, यानी कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके पास कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं। उसके अंदर आपके पास यूजुअली एक तो दिल बजाते खुद कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है आपके पास ब्रेन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तीसरा आपके पास क्या हो सकता है किडनी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। यूजुअली तीन चीजें आपके पास जो है वो हाईलाइटेड हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं इन चीजों की वजह से। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनका जिक्र करना जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है कि दीज आर द फैक्टर्स दैट कैन इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस। अच्छा, अब यहाँ पे व्हेन यू टॉकिंग अबाउट हाइपरटेंशन, अच्छा हाइपरटेंशन अगर whenever I use the word, normal blood pressure is 120 by 80 mmHg. 120 is your systolic and 80 is your diastolic. And usually when you're talking about the hypertension, again मैं ये बात क्लियर करी हूँ कि ज़्यादा मैं स्टेजेस पे आके डिस्कस करूंगी, बट when you're talking about the hypertension you usually say it's 140 by 90। ठीक है, यानी कि 140 और 90 पे जब आप जा रहे हो तो फिर आप कहते हो कि हाइपरटेंशन किसी को जो हुआ है। अब हाइपरटेंशन बहुत सारे तरीके से भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने वर्ड जो हाईलाइट किया है विच इज वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन। अच्छा, अब ये बजाते खुद बहुत क्लियर है कि किस चीज की बात कर रहे हैं। हाइपरटेंशन का मतलब क्या हुआ कि आपने ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। ठीक है, वॉल्यूम लोडिंग का क्या मतलब हुआ कि इंक्रीज वॉल्यूम की वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा एंड इट लेड टूवर्ड्स द हाइपरटेंशन। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपके पास जो है वो I think you have a diagram that is shown over here. Yes, ये वाली एक डायग्राम बनी हुई है जो कि इसमें बड़े इंटरेस्टिंग चीजें जो हैं वो दिखाई गई हैं। अच्छा, हम यूजुअली यहाँ पे बात कर रहे हैं विद द एस्पेक्ट के आपके पास किडनी मास के अंदर फॉर एग्जांपल डिक्रीज हुआ हुआ है या कोई इशू आया हुआ है या किडनी फंक्शन थोड़ा सा आपका जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ हुआ है। ठीक है, अब आपके पास देखो 0 पॉइंट है, यहाँ पे सब जगह 0 है यानी कि स्टार्टिंग का डे है एंड देन यू हैव टिल 2 वीक्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब अगर हम ये कहते हैं कि किडनी का फंक्शन किसी भी वजह से 30% नॉर्मल से जो है वो कम हुआ हुआ है, तो आपके पास अगर इनटेक ऑफ सॉल्ट एंड वाटर आप इंक्रीज करते हो इस लेवल पे एटलीस्ट अराउंड 6 times नॉर्मल एंड यू कीप दैट अप फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो आपके पास डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट अक्यूटली क्या आएगा, आपके पास इंक्रीज क्या होना चाहिए, द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम, and then definitely the blood volume is also going to increase, ठीक है, around 20 to 40% above the normal, and then the arterial pressure
will also begin to rise, right? But it is not going to rise as much as the fluid volume and the cardiac output is going to rise. ठीक है? एंड इसका कम या स्लो राइज होने का क्या रीजन है कि आपके पास टीपीआर जो है वो एज सच जो है वो नहीं बढ़ेगा. ठीक है? अच्छा, मैं रिपीट करती हूँ मैंने क्या बात बोली. मैंने ये बात बोली कि हम ये बात कह रहे हैं इस फिगर के अंदर दैट फॉर एग्जाम्पल देर इज अ पर्सन दैट यू हैव टेकन. वैसे इन्होंने डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, मैं एक इंसान के एतबार से आपको ये बात बोल रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल देर इज अ पर्सन whose kidney function is compromised to some extent and they have basically taken salt and water diet about 4 to 6 times the normal, and then they are continuing that diet for a period of time. ठीक है? अगर अभी ये मैंने ऊपर जो डायग्राम सारी एक्सप्लेन किया, ये उसी के हिसाब से मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप इसको कोरिलेट करो. ठीक है? अगर कोई ऐसा करता है तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो आपके पास इंक्रीज होगा. यहाँ पे देख रहे हो इंक्रीज कैसे हो रहा है. अब जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या चीज बढ़नी चाहिए, ब्लड वॉल्यूम बढ़ना चाहिए. अब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या चीज बढ़ना चाहिए, डेफिनेटली कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा. अब ये कार्डियक आउटपुट के बढ़ने से ब्लड प्रेशर भी उसका बढ़ रहा है. बट अगर आप एक चीज देखो तो जितना फास्ट ये बढ़ रहा है और जितना फास्ट ये बढ़ रहा है उतना फास्ट ये नहीं बढ़ रहा. ठीक है? यानी कि अगर इसकी लाइन ऐसे मैं कह रही हूँ तो उसकी लाइन थोड़ी स्टीपर जा रही है. बढ़ रहा है लेकिन इस परसेंट से नहीं बढ़ा जिस परसेंट से कि ये बढ़ रहा है. वाई? बिकॉज ये वाली चीज आपके पास नहीं बढ़ रही. ठीक है? अब सवाल ये पैदा होता है कि टीपीआर क्यों नहीं बढ़ रहा इसका. ये टीपीआर इसलिए नहीं बढ़ रहा बिकॉज यू हैव द baroreceptor mechanism that is activated at this stage. If you have the baroreceptor mechanism that is going to be activated at this stage, that means 2 से 4 दिन जब आप ये चीज कर रहे हो तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, वो basically it will try to bring the pressure back towards the normal, right? And because of this डेफिनेटली आपके पास जब तक वो बेरो रिसेप्टर रीसेट नहीं हो जाता तब तक ये वाली चीजें आपको इसी तरह से नजर आती रहेंगी. ठीक है? बट फिर आपके पास क्या होगा कि व्हेन द बेरो रिसेप्टर इज गोइंग टू रीसेट तो फिर क्या होगा, आपके पास टीपीआर देखो बढ़ना स्टार्ट हो गया. जब आपके पास टीपीआर बढ़ना स्टार्ट हुआ तो फिर आपके पास क्या होगा, डेफिनेटली दी आर्टीरियल प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है? एक बात मैंने, ये आर्टीरियल प्रेशर एकदम से क्यों नहीं बढ़ता, मैंने कोरिलेट किया है किसके साथ, विद द बेरो रिसेप्टर. यानी कि बेरो रिसेप्टर एक्टिव होके इट इज गोइंग टू ट्राई टू ब्रिंग दिस बैक टुवर्ड्स द नॉर्मल, और उसकी वजह से फिर डेफिनेटली आपके पास जो है वो एक स्टीप आ रहा है, और उसके बाद फिर जब वो रीसेट हो गया बेरो रिसेप्टर तो फिर आपका आर्टीरियल प्रेशर भी देखो एक जगह के ऊपर आके इस तरह से वो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम. देखो जैसे बढ़ रहा है कम हो रहा है. अब मैंने ये वाली चीज अभी डिस्कस नहीं की कि टीपीआर क्यों नीचे गिरा. जब कार्डियक वॉल्यूम ऊपर आया तो टीपीआर नीचे क्यों आया, कार्डियक आउटपुट. ये वाली बात आपको कहां से कोरिलेट करनी है, ये वाले फिनोमेना से, ऑटो रेगुलेशन के जो मैंने आपको बताया था. ठीक है? अब अगेन थर्ड सवाल मैंने आपसे क्या किया, वही वाला सवाल किया जो ऊपर सवाल था कि क्या आप ये चीज लिंक अप कर सके कि जब कार्डियक आउटपुट बढ़ा तो इनिशियली आपके पास टीपीआर कम क्यों हुआ और उसके बाद एकदम टीपीआर क्यों बढ़ गया. ठीक है? मैं रिपीट करती हूँ वापस से, मैंने क्या सवाल किया, मैंने ये सवाल किया कि जब कार्डियक आउटपुट आपके पास इनिशियली इंक्रीज हुआ तो टीपीआर एकदम से नीचे क्यों आया, और उसके बाद फिर टीपीआर एकदम से क्यों बढ़ा, और फिर देखो कार्डियक आउटपुट आपके पास नीचे की तरफ आ रहा है. ठीक है? तो ये वाली चीज को थोड़ा सा आप अगर मुझे समझाएं कि आपको क्लियर हुई है कॉन्सेप्ट या नहीं क्लियर हुआ, तो दैट वुड बी वेरी गुड. ठीक है? इसका मतलब है कि वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन में पहले आपके पास क्या होता है. अच्छा अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज भी इम्पोर्टेंट है दैट यू नीड टू रिमेम्बर, दैट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन डेफिनेटली यू आल्सो हैव द रोल ऑफ द एंजियोटेंसिन टू, राइट? एंड लेकिन चलें वो वाला रोल हम आगे पहले एंजियोटेंसिन टू जब पढ़ेंगे तो उसको कर लेंगे. हमारे पास वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन में भी हम इसको सिंपल इसी पे जो है वो रखते हैं कि हम वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन को वी आर रिलेटिंग टू 2 स्टेजेस. ठीक है?
पहली स्टेज के अंदर मैंने किसको इंक्रीज किया, फ्लूइड वॉल्यूम को, और फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज करते हुए मैंने किसको इंक्रीज किया, दी कार्डियक आउटपुट, ठीक है। और सेकेंड स्टेज के अंदर मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि इट इज गोइंग टू इंक्रीज the TPR and the output is nearly going to come back towards the normal, ठीक है। ये वाली चीज को फिर मैंने आपसे पूछा है कि आप किस तरह से समझ पाए हो कि पहले में जब कार्डियक आउटपुट बढ़ा था तो टीपीआर क्यों कम था, और सेकंड के अंदर फिर क्यों सेकंड स्टेज में टीपीआर इंक्रीज होना शुरू हुआ और कार्डियक आउटपुट नियरली बैक टुवर्ड्स द नॉर्मल आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये वाली चीज मुझे बताइएगा कि आपको समझ आई है या नहीं समझ आई। अच्छा, हाइपरटेंशन कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय एक्सेसिव एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अच्छा, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ ट्यूमर। अगर आपके पास ट्यूमर होता है बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड्स का, तो इट कैन सिक्रीट लार्ज क्वांटिटी ऑफ एल्डोस्टेरोन, जिसको आप प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म भी कहते हो, एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय द ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी, एंड इफ यू हैव इंक्रीज सॉल्ट एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय द ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी, it is going to increase the extracellular volume, which is going to increase the blood volume, which is going to increase the circulatory pressure, which is going to increase the venous blood volume, which is going to increase the cardiac output, which is going to increase the arterial pressure. Again, what am I talking about? This diagram. So again and again मैं एक ही चीज हाईलाइट कर रही हूँ कि अगर आपको ऊपर की डायग्राम समझ आ गई है तो आपको ये सारी चीजें जो है आराम से समझ में आ सकती हैं, और जिसके अंदर आज सच कोई मसला आपके पास नहीं क्रिएट होना चाहिए या क्रिएट होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो सेकंड इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द रोल ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इन द आर्टीरियल प्रेशर कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के अंदर देखो दो बातें आ रही हैं, एक रेनिन का नाम आ रहा है और एक एंजियोटेंसिन का नाम आ रहा है, that you need to remember or that is going to be important, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, रेनिन is an a protein enzyme, ठीक है, एंजाइम होता है रेनिन, एंड इट इज रिलीज्ड बाय द किडनीज। कब? when the arterial blood pressure falls too low or when the salt intake is reduced। तो आपके पास क्या चीज होती है जो स्टिमुलेट करती है रेनिन को? दो चीजें, डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर और डिक्रीज इन द सॉल्ट इनटेक, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि जब डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर है और डिक्रीज इन द सॉल्ट इनटेक है, तो एट दिस लेवल ब्लड वॉल्यूम भी आपके पास क्या होगा? नीचे की तरफ ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास क्या क्या चीजें हैं जो होती हैं, हमें ये याद रखना पड़ेगा इसके अंदर थोड़ा सा कि रेनिन कहाँ पे बनता है, कहाँ पे स्टोर होता है, क्यों रिलीज होता है, क्या क्या चीजें हैं जो उसको रिलीज कराती हैं, और फिर उधर से आगे हम इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब रेनिन आपके पास इट इज सिंथेसाइज्ड इन द juxtaglomeralar cells, जिसको आप जेजी सेल्स कहते हैं, ऑफ द किडनी। एंड व्हाट आर द जेजी सेल्स? द जेजी cells are the modified smooth muscle cells which are located in the afferent arterioles immediately proximal to the glomeruli, right? So this is basically the location where the renin is synthesized and stored, and it can be stimulated or it can be controlled by various factors. The most important one is going to be the sympathetic nervous system. Then there are going to be different hormones that can play a role. There's going to be autocoids such as PGs, the NO that is the nitric oxide, endothelin which is a vasoconstrictor. It can also stimulate it. So these are the things that can basically stimulate the release of the renin. अब क्या है आपके पास? You have pressure sensitive baroreceptors that are also located in the juxtaglomerular cells, and they respond to decreased arterial pressure by releasing the renin, ठीक है। Then you have, if you have decreased sodium chloride delivery to the macula densa cells in the distal tubule, it is going to secrete the release of the renin। फिर तीसरा क्या है? If you have increased sympathetic nervous system activity, so it is also going to stimulate the renin release by activating the बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर इन द juxtaglomerular cell, ठीक है। अच्छा, एक और बात भी है कि sympathetic stimulation also activates the alpha adrenergic receptors which can increase the renal sodium reabsorption and reduce the GFR in the in case if you have very strong sympathetic activation, ठीक है। And it can also increase the sensitivity of the renal baroreceptor and the macula densa mechanism for the renin release। इसका यह मतलब है कि हम क्या कह रहे हैं कि रेनिन रिलीज तीन मैकेनिज्म्स के थ्रू हो सकती है, क्या कि जो बेरोरिसेप्टर प्रेशर सेंसिटिव
आपके पास रिसेप्टर्स हैं इन द जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, वो रिस्पॉन्ड करें और रिलीज करा दें रेनिन को, या आपके पास मैक्यूला डेंसा के जो सेल्स हैं इन द डिस्टल ट्यूब्यूल वो स्टिमुलेट करा दें रेनिन के रिलीज को, क्योंकि वहां पे डिक्रीज सोडियम क्लोराइड डिलीवरी हो रही है, या सिंपली आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो रहा है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर एक्टिव होगा तो वो बीटा एडेनर्जिक रिसेप्टर्स को जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल में स्टिमुलेट करके रिलीज करा सकते हैं रेनिन को, या वो अल्फा एडेनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करा के बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं अब आर्ट्रियोलर रीनल आर्ट्रियोल्स के एंड पे कंस्ट्रिक्शन की, जो कि हम कह रहे हैं कि कैन रेगुलेट द रीअब्जॉर्प्शन एंड रिड्यूस द जीएफआर एंड इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन, एंड ऑल्सो वी आर टॉकिंग कि ये सिंपैथेटिक सिस्टम जो है ये बेरोरिसेप्टर्स और मैक्युला डेंसा को भी स्टिमुलेट करा सकता है। ठीक है, तो ये आपने कहा कि क्या 3 मैकेनिज्म्स हैं जिससे जो है वो रेनिन रिलीज हुआ। ये आपने क्या बात की कि आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज हुआ, फिर रेनिन रिलीज कैसे हुआ, तो ये 3 मैकेनिज्म्स यहाँ पे हैं कि जो रिलीज करा सकते हैं रेनिन को, कहाँ से, किडनी से। अब ये याद रखिएगा रेनिन क्या है, ये एक एंजाइम है। ठीक है, अब रेनिन किस पे एक्ट करता है, इट एक्ट्स ऑन अ प्रोटीन, अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन विच इज कॉल्ड व्हाट, एंजियोटेंसिनोजिन, राइट। दिस एंजियोटेंसिनोजिन बेसिकली ये आपके पास कहाँ पे आ रहा है, यू कैन सी दिस इज इन द लिवर साइड, राइट, एंड दिस एंजियोटेंसिनोजिन then is going to release a 10 amino acid peptide which is going to be called the angiotensin 1, right, and then the angiotensin 1 has mild vasoconstrictor properties but इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी की angiotensin 2 की आपके पास होती हैं। renin जो है it can stay in the blood for 30 to 60 minutes, and then within few seconds to minutes, when you're saying that the angiotensin 1 is formed, then you have the formation of angiotensin 2, which is an 8 amino acid peptide, and this conversion occurs due to the presence of angiotensin converting enzyme। अच्छा, angiotensin converting enzyme वैसे यहाँ पे सिर्फ आपके पास लंग्स के साइड पे शो हो रहा है, बट angiotensin converting enzyme सिर्फ लंग के अंदर एंडोथेलियम लंग वेसल्स के अंदर ही प्रेजेंट नहीं होता, और जगह पे भी होता है, किडनी पे भी होता है, और वहां पे भी वो रोल जो है प्ले करता है, बट डेफिनेटली लंग्स के अंदर इसकी हायर कंसेंट्रेशन जो है प्रेजेंट होती है, इसलिए यहाँ पे वो जो है वो हाईलाइटेड जो है वो ज्यादा होता है। अब मुझे बताइएगा, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, ये जो कन्वर्टिंग एंजाइम है इसका जिक्र मैंने चैप्टर 17 के अंदर भी एक वेजोडाइलेटर को लेकर किया था। वो कौन सा वेजोडाइलेटर था जिसके अंदर मैंने इस कन्वर्टिंग एंजाइम का जिक्र किया था, और वहां पे ये कन्वर्टिंग एंजाइम बेसिकली क्या कर रहा था। ठीक है, सो देन यू हैव द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन 2 जो है वो बेसिकली इट कैन एक्टिव cause the increased arterial pressure, and how it can cause the increased arterial pressure by 2 ways। पहली क्या चीज है, वेजो कंस्ट्रिक्शन इन मेनी एरियाज ऑफ द बॉडी, एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन के अलावा जाहिर सी बात है अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन आप आर्टरियोल्स में करा रहे हो तो व्हाट आर यू इंक्रीजिंग द डीपीआर, सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू इंक्रीज द आर्टीरियल प्रेशर, एंड इफ यू आर माइल्डली कंस्ट्रिक्टिंग द वेन्स तो फिर आप क्या कर रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग द वेनस रिटर्न, एंड देन डेफिनेटली इफ यू आर इंक्रीजिंग द वेनस रिटर्न यू आर इंक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इट कैन इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, दैट मीन्स इफ यू आर डिक्रीजिंग द एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सो डेफिनेटली आप क्या कर रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग द रिटेंशन। अगर आप रिटेंशन इंक्रीज कर रहे हो तो आप एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। अगर आप एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो तो अगेन वही वाला सारा फिनोमेना कर रहे हो जो कि यहाँ पे डिस्कस किया था, दिस अगेन। ठीक है, तो अगर आप देखें तो मैं अगेन एंड अगेन आपको 2 से 3 बातें समझा रही हूँ। In this chapter, what is the crux or the summary, that you should understand this diagram, you should correlate with this diagram। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो किडनी का मेन रोल आपको समझ आ गया। ठीक है, एंड देन बाय दैट यू शुड बी इंटर रिलेटिंग ये सारी चीजें कि कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, एंड देन this part is the second part that is important, that is a renin angiotensin system and how it is going to play a role। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें
तो हम ये कहते हैं कि एंजियोटेनेसिस जो है वो इनएक्टिव कर सकता है द एंजियोटेंसिन 2, और फिर उसकी एक्टिविटी जो है वो डेफिनेटली आपके पास जो है वो खत्म हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपको याद हो तो मैंने एंजियोटेंसिन 2 आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर 17 के अंदर भी, और उसके अंदर मैंने प्रेशर राइज को भी किया था कि एंजियोटेंसिन 2 प्रेशर को अच्छा खासा आपके पास एलिवेट करने की प्रॉपर्टी जो है वो रखता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि फॉर एग्जाम्पल किसी का बीपी बहुत ज्यादा लो हुआ है और मैं चाहती हूँ कि फॉरन एक्यूटली इम्पैक्ट आए, तो ये बात याद रखिएगा, द रेनिन एंजियोटेंसिन वेसोकंस्ट्रिक्टर सिस्टम requires at least 15 to 20 minutes to become fully active, right? So ये बहुत रैपिड एक्टिंग वाले में नहीं आ सकता कंट्रोल मैकेनिज्म में। ठीक है, क्योंकि हम ये बात कह रहे हैं कि जाहिर है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम है, सो द रेनिन बिकम्स एक्टिव टू ब्रिंग बैक दैट प्रेशर टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो ये वाली बात याद रखना कि उसका एक्टिवेशन में थोड़ा टाइम लगता है, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें विद द एस्पेक्ट ऑफ द सॉल्ट, ठीक है, angiotensin 2 causes the kidney to retain both salt and water. So how does it do that? It does that by directly uh, acting on the kidney to cause the salt and water retention, and it can also do this by stimulating the adrenal gland to secrete the aldosterone, and then the aldosterone causes the इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है। अच्छा, ये मैं थोड़ी देर पहले आपको यही वाली बात बताने जा रही थी कि जब मैं ये बात कहती हूँ कि एंजियोटेंसिन 2 कैन डायरेक्टली एक्ट ऑन द किडनी, इसके भी दो तीन तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एंजियोटेंसिन 2 कैन स्टिमुलेट द सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। कहाँ पे? किडनी की बात करी हूँ ना, तो प्रॉक्सिमल टिब्यूल ऑफ द किडनी। So if it is going to stimulate the sodium hydrogen exchanger, so definitely you are basically increasing the sodium reabsorption किधर? ब्लड में। सो जाहिर है अगर आप सोडियम रीअब्जॉर्प्शन करा रहे हो ब्लड में, तो व्हाट इज गोइंग टू फॉलो? वाटर। क्यों? वो ऑस्मोसिस वाली वही वाली बात। सो वाटर फॉलो सोडियम, तो फिर क्या होगा? अगेन द ब्लड वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज। उसके अलावा क्या हो सकता है कि ये आपके पास एनहांस करा सकता है द एक्टिविटी ऑफ सोडियम ट्रांसपोर्टर्स इन द थिक लूप ऑफ हेनले एंड द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। सो अगेन क्या बात की जा रही है? अगर आप सोडियम ट्रांसपोर्टर्स की एक्टिविटी को एनहांस करा रहे हो, तो सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन ज्यादा करा रहे हो, सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन ज्यादा करा रहे हो, तो साथ में कौन ऑटोमेटिकली आ जाएगा? पानी। पानी आएगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो अगेन यू आर टॉकिंग विद द एस्पेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर। ठीक है। तीसरी चीज क्या हो सकती है कि इट कैन डिक्रीज द रीनल ब्लड फ्लो। How it can decrease the renal blood flow? By constricting the efferent arterioles. एक होता है A efferent और एक होता है E efferent। मैं किसकी बात कर रही हूँ? E वाले की। It can basically cause the efferent arterioles to constrict. Efferent को भी करा सकते हैं, बट efferent के ऊपर इसका ज्यादा रोल होता है एज कम्पेयर टू द efferent। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने अगर efferent arterioles को constrict कराया, so I have decreased the hydrostatic pressure in the peritubular capillaries। ठीक है। यानी कि जो ब्लड अब ग्लोमेरुलस से जा रहा है, इट इज गोइंग टू फेस रेजिस्टेंस, एंड ऑन्कोटिक प्रेशर यानी कि जो पुल इन करता है प्रेशर प्रोटीन वाला, वो मैं बढ़ा रही हूँ इससे। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इन अदर वर्ड्स आई एम डिक्रीजिंग द फिल्ट्रेशन एंड आई एम इंक्रीजिंग द रीएब्सॉर्प्शन। एक दफा फिर से कि मैंने क्या बात बोली, आई रिपीट। मैंने ये कहा कि इट कैन डिक्रीज द रीनल ब्लड फ्लो। How? By constricting the efferent arterioles. If it is constricting the efferent arterioles, मैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को कम कर रही हूँ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, और मैं किसको बढ़ा रही हूँ? ऑनकोटिक प्रेशर को बढ़ा रही हूँ। इसकी वजह से बेसिकली मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि मैंने फिल्ट्रेशन को आपके पास जो है वो कहा कि एक्सक्रीशन को, सिंपली एक्सक्रीशन को मैंने कम कर दिया, और रीएब्सॉर्प्शन को जो है वो मैंने इंक्रीज कर दिया। ठीक है। तो मैंने इसके अंदर फिर एक्सक्रीशन जो बाहर यानी कि यूरिन का हो रहा था वो कम कर दिया, और जो रीएब्सॉर्प्शन है उसको जो है मैंने बढ़ा दिया। ठीक है। दैट मीन्स के इसकी वजह से फिर अब आपके पास क्या होना चाहिए? अगेन क्या होगा कि द वॉल्यूम इज
again going to increase and that is going to cause the pressure to rise. ठीक है, इसको हम एक और तरीके से जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी डिस्कस कर लेते हैं. इन्होंने यहाँ पे सिंपली आपके पास लिखा है to constrict the renal arterioles, and again they have said that the glomerular efferent arterioles is going to be constricted and it is going to diminish the blood flow through the kidneys, and the slow flow of blood reduces the pressure in the peritubular capillaries which increases the reabsorption of fluid from the tubules. तो बात वही वाली है जो मैंने भी आपको समझाई है, बट मैंने ये चीज थोड़ी सी क्लियर की है कि प्रेशर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में किसका कम होता है. हाइड्रोस्टैटिक कम होता है, ऑन्कोटिक जो है वो बढ़ता है, यानी कि पुल इन का प्रेशर बढ़ता है और जो पुश आउट का प्रेशर है वो आपके पास कम होता है, इसलिए रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है और जो एक्सक्रीशन है वो आपके पास कम हो जाती है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर एट दिस लेवल. और इसके अंदर फिर हमने जो दूसरा फंक्शन हाईलाइट किया था बेटा वो किया है ऑफ द एल्डोस्टेरोन. और अब एल्डोस्टेरोन का इतनी दफा मैकेनिज्म यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे भी किया हुआ है, तो आई बिलीव दैट दिस शुड बी नाउ प्रीटी क्लियर टू यू दैट हाउ द एंजियोटेंसिन इज गोइंग टू कॉज दिस. ठीक है, अच्छा अब ये वाला बहुत छोटा सा सिंपल सा डायग्राम है लेकिन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है एंड इट कैन बी अंडरस्टूड बाय this, that if you are increasing the salt and water intake, that means you are increasing the extracellular fluid volume. That means you are increasing the arterial pressure. ठीक है, and ये सब चीजें होने की वजह से आपके पास क्या होना चाहिए? Decrease renin, angiotensin and aldosterone. If the renin, angiotensin and aldosterone is decreased, what will happen? The salt and water excretion will increase. And if the salt and water excretion will increase, then what will happen? You will have the return of the arterial pressure more or less towards the normal. ठीक है, ऐसा ही है. अगर मैं इसको एक और तरीके से करूं तो आई कैन से, अगर मैंने सॉल्ट इनटेक इंक्रीज किया तो सॉल्ट इनटेक इंक्रीज करने की वजह से अगेन वो जो ऊपर वाली डायग्राम बनाई गई, दो तरीकों से वाटर इनटेक इंक्रीज हुआ. वाटर इनटेक इंक्रीज हुआ तो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा. एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा तो क्या हुआ? मेरे पास आर्टीरियल प्रेशर बढ़ गया. आर्टीरियल प्रेशर बढ़ा तो मेरे पास क्या होगा? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो डिक्रीज होगा. डिक्रीज होगा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम तो क्या होगा? डिक्रीज होगा रीनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, और रिटर्न होगा नेरली आपके पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम बैक टुवर्ड्स द नॉर्मल. व्हाई? बिकॉज मैंने एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर दिया. then definitely the arterial pressure can come back towards the normal. ठीक है, इसीलिए आप देखिएगा आजकल जो दवाइयां आपके पास ज्यादा आती हैं या चलती हैं वो कौन सी होती हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्लॉकर्स. ठीक है, इनहिबिटर्स जिसको आप एस कहते हो, या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जिसको आप आर्ब्स कहते हो. ठीक है, तो ये दो दवाइयां जो है वो आपके पास काफी कॉमनली जो है वो यूज होती हैं और जो है वो दी जाती है. ठीक है, तो ये वाली चीज यहाँ पे जो है वो आपके पास है. अच्छा, 1 किडनी 2 किडनी गोल्ड बेल्ट हाइपरटेंशन बेसिकली एक मॉडल था जो एक साइंटिस्ट ने जो है हैरी गोल्डबैक ने बनाया था टू एक्सप्लेन द इम्पैक्ट कि अगर किडनी आपके पास कॉम्प्रोमाइज होती है या आपके पास रीनल आर्टरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज कंस्ट्रिक्शन के इम्पैक्ट से हो रही होती है तो क्या इफेक्ट आता है. इसको मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में छोटा सा करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाए. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 1 किडनी गोल्डबैक हाइपरटेंशन, वी आर सेइंग फॉर एग्जाम्पल इस मॉडल में से क्या क्या था कि एक किडनी रिमूव हुई हुई थी और एक किडनी सिर्फ प्रेजेंट थी. तो जब सिर्फ एक किडनी प्रेजेंट थी तो आपके पास अगर फिर रीनल आर्टरी को उसने कंस्ट्रिक्ट किया पार्शियली उस एक किडनी का, तो फिर क्या मसला आया? आपके पास रीनल परफ्यूजन जो है वो डिक्रीज हुआ. जब रीनल परफ्यूजन डिक्रीज हुआ, फ्लो डिक्रीज हुआ, तो डेफिनेटली द ब्लड फ्लो टू दैट पर्टिकुलर पार्ट डिक्रीज. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ? द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम got stimulated which caused vasoconstriction and sodium and water retention. अब आपके पास नो
normal kidney was available to excrete the excessive salt and water. So you have the volume loading hypertension that will be developed in this type of model. Why? Because you have increased blood volume. Initially you will have increased cardiac output, and later definitely second stage में कौन बढ़ता है, the total peripheral resistance is going to increase. ठीक है? अच्छा, अगर अब आप इसी मॉडल को दूसरे तरीके से देखते हैं, दैट मीन्स द टू किडनी गोल्ड बैथ हाइपरटेंशन, तो उसके अंदर आपके पास दो किडनीज हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट ना यूजुअली डॉग्स पे करते थे साइंटिस्ट ज्यादा, क्योंकि वो करना जरा ज्यादा आसान था टू फाइंड आउट कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है या क्या इम्पैक्ट नहीं हो सकता है। तो टू किडनी गोल्ड बैथ हाइपरटेंशन में क्या था कि एक किडनी के अंदर स्कीमिया क्रिएट कराया था उन्होंने, और सेकंड किडनी को जो है वो नॉर्मल रखा था। अब स्कीमिया का क्या मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू वन किडनी। अब जो किडनी जिसके अंदर स्कीमिया था, तो डेफिनेटली उसने सेंस किया कि उसके पास प्रेशर भी, आपके पास जो है ब्लड वॉल्यूम फ्लो वगैरह कम होगा उसी किडनी में। तो वो फिर क्या चीज सिमुलेट होगी? अगेन दी रेनिन। व्हेन द रेनिन is going to get released from there, again it's going to increase the angiotensin. अब क्या है कि क्योंकि उस किडनी के अंदर एंजियोटेंसिन इंक्रीज हुआ, तो अगेन आपने उस किडनी में क्योंकि स्कीमिया है तो एक्सक्रीशन प्रॉपर तो नहीं हो पाएगा, तो अगेन वो वॉल्यूम वाला इशू उधर आया। अब नॉर्मल किडनी ने क्या किया, क्योंकि उसका भी एक्सपोजर हो रहा है इंक्रीज बीपी से, तो वो क्या करेगा? प्रेशर नेट्री कराएगा, दैट इज इट्स गोइंग टू कॉज द इंक्रीज सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन। अब इसके अंदर क्या मसला आएगा? यू विल हैव रेनिन डिपेंडेंट हाइपरटेंशन। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपके पास ब्लड वॉल्यूम तो आप नेरली नॉर्मल लाने की कोशिश कर रहे हो, बट बीपी क्यों बढ़ा हुआ है? बिकॉज ऑफ द वेजो कंस्ट्रिक्शन दैट इज अकरिंग इन दी कॉम्प्रोमाइज्ड पार्ट ऑफ द किडनी। ठीक है? तो अगर आप पहले वाले में देखो तो क्या हो रहा था? वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो एक ही किडनी थी, और वो एक ही किडनी के अंदर अगर आपने चीजों को कॉम्प्रोमाइज किया हुआ था, तो डेफिनेटली आप बाहर एक्सक्रीशन नहीं करवा पा रहे थे, एंड दैट वाज लीडिंग टुवर्ड्स दी वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन। दूसरे के अंदर क्या है कि अगर एक कॉम्प्रोमाइज है लेकिन दूसरी नॉर्मल है, तो आपके पास वॉल्यूम बिल्डअप तो आप कंट्रोल कर पाने की कोशिश कर रहे हो एंड कर पा रहे हो, बट जो वेजो कंस्ट्रक्शन वाले फैक्टर्स हैं उसको आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, और वो किस से एसोसिएटेड है? बाय द रिलीज ऑफ द रेनिन। ठीक है? तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है वन किडनी एंड टू किडनी गोल्डमैन की उसका। ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास मैं हाइपरटेंशन को लेके, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, मैं एक अलग से आपको शेयर कर दूंगी, ताकि वो टॉपिक थोड़ा सा हम उस तरफ ले जाके कर लेंगे। बट ये वाली चीज समरी कि क्या चीजें आपके पास इम्पैक्ट करी हैं और किस तरह इम्पैक्ट करी हैं, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वी से व्हाट आर द मैकेनिज्म्स that how the arterial pressure is being regulated. It is basically divided based on the arterial pressure control mechanisms that act rapidly within seconds or minutes, the arterial pressure control mechanisms that act after many minutes, and the arterial pressure regulation mechanisms that occur in the long term. ठीक है? तो तीन तरीके के हैं। अगेन ये वाला फिगर बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, जिसके अंदर उन्होंने सबको डालने की कोशिश की है, सो यू कैन हैव अ लुक एट दिस एज वेल इफ यू वांट। ठीक है? रैपिडली एक्टिंग प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म्स के अंदर मेरा ख्याल से ये तो ऐसा वाला है कि अगर आपने सही से चैप्टर को पढ़ा है, समझा है, तो आपको ये बात सबसे पहले पता होगी कि सबसे इंपॉर्टेंट फीडबैक मैकेनिज्म कौन सा होता है? द बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, राइट? विद इन सेकेंड्स जो है वो उसको नॉर्मल की तरफ वापस लेकर आता है। सेकेंड वाला आपके पास जो हाईलाइटेड है, अच्छा, इधर कीमो रिसेप्टर मैकेनिज्म, ये भी इसके साथ ही है, बेरो के साथ आगे पीछे। डिफरेंस क्या होता है कि ये सिर्फ स्ट्रेच को डिटेक्ट करता है, और ये आपके पास केमिकल्स को डिटेक्ट करता है, जिसमें मैंने हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जिक्र किया था। एंड देन यू हैव द लास्ट डिच रिस्पॉन्स और द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्केमिक मैकेनिज्म, जो कि आपके पास तीनों हमने डिस्कस की हैं चैप्टर 18 के अंदर। ठीक है? ये हो गई चीजें सारी आपके पास। और फिर हम बात करते हैं अबाउट दी प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म्स दैट एक्ट आफ्टर मेनी मिनट्स। अच्छा, ये वाली बात मेरे हिसाब से ऑब्वियस है कि जब मैं बेरो रिसेप्टर या कीमो रिसेप्टर या सेंट्रल नर्वस रिसेप्टर इसके में रिस्पॉन्स की बात कर रही हूँ, तो दे आर वेरी पावरफुल मैकेनिज्म्स दैट इफ एनी फॉल इन प्रेशर अकर्स ड्यू टू एनी हेमरेज और नर्वस सिस्टम मैकेनिज्म, कोई भी उससे, तो आपके पास कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेन्स हो सकती है और ट्रांसफर करेगा ब्लड इनटू द हार्ट, इंक्रीज हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, and then the constriction of the peripheral arterioles, and by this it is going to basically bring the arterial pressure back towards the normal, and vice versa as well. अगर बढ़ेगा तो फिर भी ये
ऐड करके नॉर्मल की तरफ उसको लेकर आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप बात करें मिनट्स की, तो इसके अंदर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 15 से 20 मिनट, इफ यू रिमेम्बर, दैट वाज दी रेनिन एंजियोटेंसिन वेसोकंस्ट्रिक्टर मैकेनिज्म, और ये पूरा अभी मैंने एक्सप्लेन थोड़ी देर पहले आपको किया भी है। सेकेंड वाला जो आपके पास आता है उसको आप कहते हो स्ट्रेस रिलैक्सेशन फिनोमेना। अच्छा, स्ट्रेस रिलैक्सेशन फिनोमेना के अंदर हम क्या बात करें, फॉर एग्जाम्पल द प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स इज टू हाई, ठीक है। अगर ब्लड वेसल्स का प्रेशर हाई होगा तो वो क्या उसको कराएगा, इट विल कॉज इट टू स्ट्रेच, एंड इट विल कॉज इट टू स्ट्रेच फॉर मिनट्स और फॉर टाइम जब तक कि वो हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्रेशर इन द वेसल विल फॉल टूवर्ड्स द नॉर्मल. That means the stretch of the vessel is going to initiate the stress relaxation phenomena, and this stress relaxation phenomena can act as a buffer, ठीक है। यानी कि stretch की वजह से आपके पास क्या होगा कि relaxation का phenomena induce हो सकता है, which can bring it back towards the normal, ठीक है। थर्ड चीज क्या है आपकी, इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म। अच्छा, ये वाली चीज को वेसल के अंदर कौन सा मसल होता है, स्मूथ मसल। ये याद है, ये मैंने आपको समझाया भी था यूरिन यूरिन के सिस्टम को लेके, सी इफ यू कैन कोरिलेट विद दिस, ये वाला फिनोमेना ब्लैडर को लेके मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर रिमेम्बर, ठीक है। अच्छा, फिर आप आ जाओ कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म की तरफ। कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म के अंदर क्या है कि if for example you are saying that the capillary pressure is falling too low, so the fluid is going to be absorbed from the tissues through the capillary membrane and into the circulation. It is getting absorbed into the circulation, so definitely it is building up the blood volume and increasing the pressure into the circulation. अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे, कैपिलरी प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, सो फिर क्या होगा, फ्लूइड विल बी लॉस्ट आउट of the circulation and where it will go into the tissues. So फिर blood volume क्या हो जाएगा, वो low हो जाएगा, ठीक है, और back towards the normal pressure जो है वो आपके पास आ जाएगा. These three intermediate mechanisms usually आपके पास minutes to hours तक जो है वो काम कर सकते हैं, and फिर आप ये कहते हो कि as such इस वाले में नर्वस सिस्टम इतना जो है वो डोमिनेंट नहीं होता, नॉन नर्वस सिस्टम जो है वो ज्यादा आपके पास डोमिनेंट है यहाँ पे। फिर आ जाओ लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म पे। लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है because now I am talking about the kidney's role, right? Now I am going to talk about, for example, if there is decrease in arterial pressure, so it can lead to increase in aldosterone secretion, and this is going to again influence the renal body fluid mechanism or the dynamics. So अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के अंदर मैं किसको लेके आ रही हूँ, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को लेकर आ रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं सिंपैथेटिक सिस्टम को भी कोरिलेट कर सकती हूँ विद रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अभी जो हमने पूरा किडनी की चीजें सारी डिस्कस की हैं वो आ जाएंगी इन द लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ द आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है। सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर। इस चैप्टर के अंदर बस जो एक पार्ट है डिजीज का, हाइपरटेंशन का, वो मैं एक अलग से थोड़ा सा आपको करके होपफुली आज रात या कल सुबह तक शेयर कर दूंगी, ताकि वो भी चीजें क्लियर में हो जाए। यहाँ पे एक समरी के फॉर्म पे मैं आपको ये बात अगेन बता रही हूँ कि जो ये वाली चीजें हैं जिसमें ये ग्राफिकल और टेबुलर चीजें बनी हुई हैं, इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर अपने पास जो है वो बना लीजिएगा या याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लैरिटी पे रखिएगा. अगेन आई हैव आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस एंड आई होप यू विल बी एबल टू आंसर देम.